Good evening, children. Today we are going to revise the second chapter of Chemistry Class 9, that is matter around us pure? Before beginning of this chapter, I would like to explain a few points. First of all, in this chapter we are going to study about mixtures. What are the different types of mixtures? And what are the different separation methods? By which the different components of the mixture can be extracted. So let us begin with the first point. What are mixtures? Mixtures are impure substances joined together by physical methods. These are known as mixtures. And now mixtures are of different types. First of all is solution. What is solution? Write down. It is homogeneous mixture of two or more substances Example: salt plus water, lemonade, etc. These are known as mixtures. And alloys are also solutions or homogeneous mixture. Okay, they are joined together by physical processes. And air is also a homogeneous mixture. They are gaseous solutions. Okay, they are homogeneous का मतलब ये होता है कि the particles are evenly distributed and we cannot separate them with filtration. The particles are so much dissolved in the solvent that it is very much difficult to separate by the method of filtration. The component of the solution that dissolve the other component in it, usually the component present in larger amount is called the solvent. इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट. कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं. Very important for examination point of views. Today we are going to revise it. Properties क्या क्या है? Solution is homogeneous. Second property, size of the particle is 1 nanometer. मतलब 10 to the power minus 9 meter in diameter. ठीक है. Not visible with naked eyes. They are not visible with naked eyes. And the fourth property is do not scatter light. मतलब लाइट अगर उसमें से पास करेगा तो वो उसको स्कैटर नहीं करेगा. और लास्ट पॉइंट ये है, कैनॉट बी सेपरेटेड बाय
cannot be separated by filtration. ये important point है, इसको थोड़ा याद रखेंगे. It cannot be separated by the method of filtration. Moving on to the next type of mixture, which is known as suspension. उससे पहले एक प्रॉपर्टी है, एक पॉइंट है, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. इसका दो फॉर्मूला है. पहला है मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज. इसका क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट into 100. That is the solubility. Okay. दूसरा दिया हुआ है मास बाय वॉल्यूम. इसका फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट by volume of solution into 100. That is the formula of concentration. We can calculate it by these two methods. Now let us move on to the suspension part. What is suspension? इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सबसे पहले याद रखेंगे हेट्रोजीनियस होता है. उसके बाद पॉइंट दूसरा याद रखेंगे, पार्टिकल साइज इज लार्जर. मतलब विजिबल टू नेकेड आई. तीसरा पार्ट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. और चौथा प्रॉपर्टी है स्कैटर लाइट. स्कैटर लाइट का मतलब दे कैन scatter a beam of light passing through it and make its path visible. ठीक है, स्कैटर लाइट कर सकते हैं. सस्पेंशन का ये चार है. और दूसरा है दे सेटल डाउन, पार्टिकल सेटल डाउन. when left undisturbed. Particles get settled down when they left undisturbed. Okay, so it is very simple. आपको याद रखना है इसमें 4-5 प्रॉपर्टीज जो मैंने बताया. सबसे पहला हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. दूसरा पार्टिकल साइज इज लार्जर एंड विजिबल टू नेकेड आई होता है. तीसरा पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन. चौथा है इट कैन स्कैटर द लाइट. एंड पांचवा है पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं सस्पेंशन के बारे में. अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, तो ये आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज नोन एज कोलोइडल. कोलोइडल सॉल्यूशन. कोलोइडल सॉल्यूशन में आपको ये याद रखना है कि कोलोइडल सॉल्यूशन इज द इंटरमीडिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन. मतलब उसका कुछ प्रॉपर्टी सॉल्यूशन जैसा होता है, कुछ प्रॉपर्टी सस्पेंशन जैसा होता है. तो प्रॉपर्टीज उसका नोट डाउन कर लेंगे प्लीज.
कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी पहला नोट डाउन करेंगे, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ colloid इज टू स्मॉल टू बी विजिबल। मतलब हमको विजिबल नहीं होता है, बहुत छोटा होता है पार्टिकल्स। उसके बाद दे स्कैटर द लाइट, और अलग अलग स्टेट का अलग अलग मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। जैसे अगर गैस गैस, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, इसमें अलग अलग एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, एक डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। इसमें दो होता है, डिस्पर्स्ड फेज और जो ज्यादा होता है वो होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग, जैसे अगर लिक्विड डिस्पर्सिंग फेज है और मीडियम अगर गैस है तो वो बनता है एरोसॉल। ठीक है, इसका टेबल हमारा एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 18 में दिया हुआ है, इसको एक बार नोट डाउन जरूर कर लें। प्रॉपर्टीज में क्या दिया हुआ है देखें, इट स्कैटर द लाइट and the path is visible. चौथा पॉइंट ये लिखेंगे, they do not settle down. पार्टिकल जो होता है वो फुल्ली डिस्पर्स्ड होता है, इसलिए वो सेटल डाउन नहीं होता है। they do not settle down. और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, स्टेट ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के हिसाब से अलग अलग प्रकार का होता है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, फॉग, उसके बाद में शेविंग क्रीम, उसके बाद में मिल्क, उसके बाद में स्पॉन्ज। ये अलग अलग प्रकार का स्टेट का डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्सिंग फेज होने की वजह से अलग अलग प्रकार के बनते हैं। ठीक है, और ये सेपरेट नहीं हो सकते फिल्ट्रेशन से, ये कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। I hope that is clear to everyone. Now moving on to the next part, separating components of a mixture. Separation method. इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ important separation method हमको याद रखने पड़ेंगे depending upon the components. सबसे पहला है evaporation method, जिसमें कि सेपरेट होते हैं सॉल्यूशंस, सॉलिड सोल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट। ये सेपरेट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या सेपरेट होता है, क्रीम फ्रॉम मिल्क,
मतलब जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन ब्लड कंपोनेंट्स यूरिन, इन सब जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उन सब का सेपरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में और क्या होता है, स्पिनिंग होता है, घूमता है। तो बहुत ज्यादा घूमने की वजह से क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है कंपोनेंट्स जितने जितने हैं। थर्ड, सेपरेशन फनल। इसमें क्या सेपरेट होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स। जो लेयर बाय लेयर बन जाता है, इमिसिबल लिक्विड्स होता है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल, लाइक ऑयल प्लस वाटर, कंपोनेंट्स ऑफ आयरन ओर, ठीक है। इसके बाद इसका यूज होता है सीवेज में, सीवेज स्लैग जो लाइटर रहता है उस और जो नीचे हैवी रहता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है, लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। डेंसिटी की वजह से वो अलग अलग लेयर बनता है और उसकी वजह से उसको सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चौथा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या सेपरेट होता है, जो सब्लिमाइंड मिक्सचर जो कि सबलाइम हो सकता है, एग्जाम्पल एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, नेफ्थेलिन, कैम्फर। ये सब जो सब्सटेंसेस होते हैं ये डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस स्टेट में जाते हैं या गैसियस टू सॉलिड स्टेट में आते हैं, उनका लिक्विड स्टेट नहीं होता है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट दे कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। नेक्स्ट हम मेथड पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी में द डिफरेंट टाइप ऑफ dyes component, they can be separated. dyes component with water, ये इजीली सेपरेट हो पाता है। एक पेपर स्ट्रिप में वो डाई को रख के जब वाटर उसमें से पास करता है तो अलग अलग कलर सेपरेशन हो जाता है, सेपरेशन ऑफ कलर्स में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, हम क्या सेपरेट करते हैं, मिसिबल लिक्विड्स। तो वो मिसिबल लिक्विड्स क्या होता है, हम सेपरेट करते हैं बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड से।
एग्जाम्पल वाटर प्लस एसीटोन। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? और दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, बहुत ही कम डिफरेंस, जब बहुत ही कम डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का, लेस डिफरेंस, तो उसमें हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल हम एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, पेट्रोलियम का करते हैं, सॉरी, पेट्रोलियम का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम डिफरेंस होता है अलग अलग कंपोनेंट का, अलग अलग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ही कम डिफरेंस होता है, इसीलिए हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। और एक मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम impure सैंपल, उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में उसको मतलब बनाया जाता है, उसके बाद में उसको इवेपोरेट करके क्रिस्टल्स जितने होते हैं उन सबको सेपरेट किया जाता है। तो इसमें इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर यूज होता है? प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में क्रिस्टलाइजेशन का यूज होता है, या फिर एलम में जब हम उसको यूज करते हैं तो उसका क्रिस्टलाइजेशन मेथड से उसको सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द वाटर प्योरिफिकेशन मेथड। वाटर प्योरिफिकेशन में अलग अलग प्रकार का मेथड होता है। वाटर प्योरिफिकेशन में अलग अलग स्टेप्स होता है। सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है? सेडिमेंटेशन, जिसमें कि हैवी जो मतलब इम्प्योरिटीज होती हैं वो सेटल हो जाती हैं और वहां से वाटर फ्लो करके आगे निकलता है। उसके बाद में होता है लोडिंग, जिसमें कि हम यूज करते हैं एलम, that helps in making a different type of मतलब लोडिंग की वजह से जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी बन जाते हैं और वो उसको सेटल डाउन कर देता है। तो सेटल डाउन करने की वजह से अगेन द वाटर इज गोइंग थ्रू। थर्ड मेथड है फिल्ट्रेशन टैंक, जिसमें कि वो फिल्टर होता है, अलग अलग प्रकार का सैंड, ग्रेवल, ये सब चीज होने की वजह से वो फिल्टर होके आगे निकलता है। चौथा प्रोसेस है क्लोरीनेशन, टू किल बैक्टीरिया, जितने भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं, और फिर वहां से वो रेडी टू यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है सेडिमेंटेशन, दूसरा है लोडिंग, तीसरा फिल्ट्रेशन, चौथा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इज द लास्ट प्रोसेस, जिसमें कि क्लोरीन टैबलेट्स या क्लोरीन गैस मिलाया जाता है पानी में टू किल द बैक्टीरिया सो दैट इट इज रेडी फॉर यूज इन आवर होम।
नेक्स्ट सेक्शन है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हम जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं। जो फिजिकली केमिकल चेंज टोटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज में क्या होता है और फिजिकल चेंज में क्या होता है। इसमें होता है अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें क्या होता है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है। इसमें क्या होता है नो चेंज ऑफ स्टेट। फिजिकल चेंज में चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इसमें क्या होता है देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होता है नो केमिकल रिएक्शन। तो किसी चीज का टूटना, किसी चीज का स्टेट चेंज करना, दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। एग्जांपल अब यहां पर अगर मैं लिखूंगा कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। जो मेल्ट करता है दैट इज फिजिकल चेंज, बट केमिकल चेंज क्या होता है जब वो पूरी तरह जल जाता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में आता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होता है दे आर मेड अप ऑफ one type of atoms. और ये क्या होता है दे आर मेड अप ऑफ one type of molecules. मॉलिक्यूल्स क्या होता है मॉलिक्यूल्स आर two or more atoms joined together, तो वो बनता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है। एलिमेंट्स में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कंपाउंड में अलग अलग प्रकार के कंपाउंड होते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमको समझ में आ गया कि क्या क्या होता है। मैटर जो होता है, मैटर या तो सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में होता है। अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं, दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। ठीक है। बट यहां पर मिक्सचर्स में क्या होता है होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है। सो बाय नाउ हमको समझ में आ गया है व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सब चीज को आप एक बार प्लीज रिवाइज करेंगे और तब तक मैं आपसे मिलूंगा हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में।